Impact of Satavahana Empire on art, architecture, sculpture with reference to Amravati School of Art. Art and architecture is one area which is completely जहाँ सबसे कम मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के, even though it's the easiest part because you have to just cram, but cramming becomes probably the most difficult part. So Matsya Puran provide information about Satavahana Empire. It also mentioned the number of years for which it continued for more than 4 centuries. Sources are being written by the student literary as well as archaeological, which is relatively good. Impact में देखो आसान है. If we talk about architecture, पांडवलेनी केव्स हैं, तो इनिशियल जितने भी केव्स हैं आपकी वेस्टर्न महाराष्ट्र वाले पार्ट की, वो सारे आप किससे लिंक करेंगे? सातवाहना से. स्तूपा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो लिंक्ड. अमरावती वाज वन ऑफ द इनिशियल कैपिटल, तो वहाँ पे स्तूपा मिलता है, दैट इज ऑल्सो लिंक टू देम. Then Amravati School of Art specific influence, like we can mention about the material which is used, है ना, white marble को use करते हैं. Then time period लिख सकते हो इनके बारे में. Features, here the major focus is more on connected story rather than the portrait of Buddha. So did not focus on individual portrait of Buddha, focuses on iconography, and Jataka stories are becoming more important. Then even the analysis of some eminent personality can be written in the case of architecture. Like here the student has used Ananya Gupta. So Ananya Gupta says Amravati School of Art was fascinating display of elegance, grandeur and narrative depth with capture intricate beauty and spiritual teaching with unparalleled craftsmanship. So when you use such heavy lines, ठीक है, naturally you will get good marks because it's a good assessment. आर्किटेक्चर में आपके मेरे जैसे लोगों को इतने अच्छी लाइंस नहीं आएंगे बिकॉज आर इंग्लिश इज रिलेटिवली वेरी बेसिक लेवल. सो दिस इज अ गुड अप्रोच. ठीक है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं. क्वेश्चन में कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट है नहीं, यहाँ सिर्फ पॉइंट्स एनालिसिस, दैट्स इट. Hi, welcome to Prep Career IAS. Today I am here with a very important announcement. We are starting a brand new batch of History Optional Foundation. So if you are somebody who is looking for history as an optional, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री से फ़ायदा क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं, टॉपर्स कितने निकलते हैं. एंड देन इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, देन यू कैन ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट. चलिए बात करते हैं. सो द प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम 23rd of July. If you see from last few years, okay, हर साल टॉपर्स के 300 या उसके आसपास मार्क्स रहे हैं. In 2018 I was able to get 324 marks and with the period of time we have produced large number of toppers. अगर आप देखोगे 17 में 316, 18, 19, 20, 21 as well as 22. Every year people are getting around 300 or more than 300 marks. उसके आसपास आ ही जाता है. In fact, the topper of 2023, she also got more than 300 marks. So it's a specific optional where you get good marks. प्लस व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल. देखो आपके जीएस में बहुत हेल्प करता है. प्रीलिम्स में कभी 10 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 से लेकर 40 मार्क्स तक मैक्सिमम आपका यहाँ से हो सकता है डायरेक्टली. GS1 में 100 मार्क्स के आसपास, GS2 में 50 एंड GS3 में 25 मार्क. लैंड रिफॉर्म्स वगैरह वाले जितने भी टॉपिक्स हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के, वो सारे हिस्ट्री ऑप्शनल से ही डायरेक्टली लिंक्ड है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शनल जो थोड़ा सेफ भी रहे और जिसमें मार्क्स भी एक अच्छे लेवल तक आ जाए पढ़ाई करके, तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल. With respect to our classes, okay, if you see our methodology is a bit unique. What do we focus upon? First of all, we give some specific classes which are concept oriented, कि भाई आप बेसिक चीज़ें समझो. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जैसे मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था. सो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग इन द बिगनिंग. तो वो हम सबसे स्टार्ट में आपको कुछ बेसिक NCERT क्लासेस देंगे. Then we'll go towards the core classes. These core classes are going to focus specifically on the topics of the history optional, and जो जितने भी topics हैं सब के ऊपर आपको अच्छे notes मिलेंगे. And side by side our classes are going to incorporate all the PYQs. जितने भी PYQs हैं सबको incorporate कर लेंगे. आपका एक अच्छा डेडिकेटेड रिवीजन टाइम मिलेगा शेड्यूल के साथ में. कंटिन्यूस असेसमेंट भी की जाती है कि हर 14 दिन के अंदर आपको एक टेस्ट देना है. इफ़ यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द टेस्ट, इफ़ यू आर एबल टू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका अच्छे मार्क्स UPSC में भी आ जाएंगे. बट फॉर दैट यू हैव टू बी रेगुलर, एंड वो अच्छी हैबिट इनकलकेट करने के लिए हमने ये स्पेसिफिक प्रोसेस बनाया. एंड फाइनली होलिस्टिक मेंटरशिप, नॉट जस्ट फॉर ऑप्शनल, फॉर ऑल द पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज ऑल्सो. एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स, हाउ टू क्लियर मेन्स, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स in the interview, all those things we focus on at Prep Career IAS. So once you are becoming part of this foundation course, it's not just about optional, it's also about your overall rank in the specific civil services itself. तो सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं.
देन अगर क्वांटिटेटिवली बात करोगे तो लगभग 150 प्लस सेशंस हो जाते हैं, 90 प्लस हमारी कोर कंसेप्ट क्लासेस रहती हैं, 40 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन हो जाते हैं क्लास के अंदर, एंड फाइनली जो आपको कुछ वैल्यू एडेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं टू मेक यू एट ईज विद द हिस्ट्री ऑप्शनल। क्यों? बिकॉज देखो कभी क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन दे दिया आपको, ठीक है, साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट मैप की जो साइट्स वगैरह उनकी कंपाइलेशन दे, तो ऐसे कर करके जितना भी एनालिसिस चाहिए होता है इस ऑप्शनल के लिए उन सबको हमने डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सो दैट हुएवर जॉइन्स दिस उनको हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपके पास शुरुआत से ही एज रहे, और एज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। सो दिस इज़ अबाउट द क्वांटिटेटिव। देन टेस्ट मिल जाते हैं आपको, 14-15 टेस्ट मिल जाते हैं ओवरऑल मिला के। देन वेबिनार्स होंगे मेरे साथ में, क्रिस्प हैंडआउट है, एंड मेंटरशिप सेशन तो साथ में चलते ही रहेंगे। इन 22 वी वर एबल टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड दिस लेगेसी गोज अ लॉन्ग बैक। 2022 में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 21 में इनफैक्ट द रैंक 1 शी वाज फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज। सो इफ वी स्टडी वेल, इफ वी डेडिकेट आवरसेल्फ टू दिस ऑप्शनल कैन गिव यू वेरी गुड रिवॉर्ड, एंड हमारे साथ प्रिपेयर करोगे तो किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई माई सेल्फ बीन एन ऑफिसर, आई माई सेल्फ बीन एन एस्पिरेंट ऑफ स्टडिंग विद दिस ऑप्शनल, मैंने हर चीज़ देखी है, एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 12 years टेल्स मी ओनली वन थिंग, दैट इफ़ यू आर स्ट्रेटेजिक, इफ़ यू आर मेथडोलॉजिकल, एंड इफ़ यू फोकस ऑन द राइट एरियाज, you can get very quick result, but yes, you have to be dedicated from your side. So if you are somebody with energy, somebody with dedication, become a part of this. 23rd जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आपको अच्छे तरीके से मेंटर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड सिनर्जी बिटवीन अस, एंड आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस मार्कशीट वगैरह भी अगर आप देखोगे तो यू कैन सी इवन माई मार्कशीट, यू कैन सी आई गॉट 324 marks here. You can call on these numbers. These are the numbers through which you can get connected to our counselors. और counselors के through जितने भी queries हैं with respect to this program, you can eventually solve them out. आप offline visit भी कर सकते हैं in ORN, उसका भी एड्रेस वगैरह आपको वो सेंड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।